Hello, SYBCon students. Good afternoon. Hello. Good afternoon, SYBCon students. Shall we start? Shall we start? Prachi. Prachi. Shall we start? Shall we start or not? Yes, ma'am. Okay. So yesterday, what we were discussing. This was the last point. Tell me. This was the last point. Prachi. This was the last point. बताइए. This was the last point. Will you reply me? I'm asking you. Will you reply me? Which was the last point? Prachi, who were attending the lectures yesterday? Who had attended the lectures yesterday? Do you remember? Will you tell me, please? I think the concept of disaster, am I right? Concept of disaster, yes or no? Concept of disaster had done completely? Yes or no? Saima? Saima? Which was the last point? Tell me, please. Which was the last point, Saima? No one is answering. I shall go ahead. Okay. Let new questions. What are the effects of disaster on human life? Which are which explain the types of effects of disaster on human life. There are four effects: that physical, social, or economical, then psychological. So there are four effects. First is physical, second is social, third one is economical, and fourth one is psychological. Get it? Okay, now let's start that first point, our physical effects of disaster. Okay, physical injury, first point. Generally, several people get injured by the earthquakes, flood and cyclone. For example, in 2001, earthquake in Gujarat, about 1.7 lakh people injured. And in 1993, there was an earthquake in Latur. Over the 30,000 people were injured. Okay, so whenever the disaster occurs, at that time, that physical disturbance or physical uh, falls, we can see. Physical falls means the people were died or the people lost their lives or injured in this particular disaster. Okay, here the two examples are given. In 2001, the earthquake occurred in Gujarat, and in that 1.7 lakh people were injured. So here the number is what is given, but that whenever that this kind of natural calamities occurs, that particular number, what do you say? That particular number will be given to us. Particular number will be given to us.
No, ma'am. Okay, it is just for example more than 1.7 lakh the people were died or injured. Okay, but here that whenever the data will be revealed, that true number will not be given most probably. Okay, in 1993 there was an earthquake in Latur. The same earthquake in Latur in 1993. Here the 30,000 people were injured. Deaths. The disaster like earthquake, flood, drought, and cyclone storm can result in the death of several people. So, whenever that natural disaster occurs, the most probably the people died in this disaster or they lost their lives. Lost their lives. For example, in India, the highest ever death toll was recorded in 1969 famine in Bengal. So whenever that disaster occurs, that here one example is given in 1969 in Bengal, that the highest people died in the 1969. This is the highest toll record of death in India. About 10 million people died in famine. So the people, 10 million people were died. And cyclone in 1970 in West Bengal killed about the 5 lakh people. And whenever the cyclone occurred in 1970 in Bengal, that here 5 lakh people were died. More than 50,000 lost their lives in 1999 and cyclone in Orissa. The same cyclone occurred in Orissa at that time. More than 50,000 people were lost their lives. So here, whatever the number is given, I don't think so that the proper number will be given. Sometimes that more than whatever the number is given, more than the people will die. Or sorry, the more than the people were died or will died whenever the disaster occurs. Get it? Do you understand, all of you? Yes. Yes. Okay, whenever I'm asking you which was the last point, because I'm taking lectures in everywhere, SY SY BSc, so I don't remember. But you remember, if the points were already over, then we shall go ahead. No one is answering. I'm asking you twice, 5 times I'm asking you, but no one is replying. No one is replying. What is the use of it? What is the use of it? If I'm asking you, then you are not replying. Next point is social effects. That economical and social development throughout the world is frequently interrupted by the extreme events. The Pacific Rim is particularly vulnerable to the natural disaster, thus the social and economic losses. Although the disaster events impact on both developed and developing countries. In later, they can cause the sharp increase in the poverty. So what do you think that whenever the disaster occurs, it disturbs the normal life, na? According to your point of view, it disturbs the normal life. Am I right? Am I right? Yes. Yes, ma'am. Okay, so here extreme events occur. Okay, so its effect is seen on social and economic development also. So yesterday I had given one example that cyclone was occurred on 3rd June in Dapoli. Okay, in our Ratnagiri district. So that we experience that whenever the things will be recovered, it takes a time. Whenever the things will be recovered, it takes a time. Am I right? Am I right? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. That although the disaster events impact both developed and developing countries, that though the country, those who are already developed and rich country, it also impacts the and developing, just like our India, it is also going to impact that. It doesn't mean that developed country they don't have any connection with these particular things. They have also the connection whenever the natural calamities happen or occurs, that they have to be impacted, or they sorry they are also be impacted. हमको ऐसा लगता है कि जो
डेवलप कंट्रीज उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है 2020 का, अभी जो हमारा जो टाइम चल रहा है, तो कई जगह आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कई जगह पे बाढ़ आ रही है, कई जगह पे ड्रॉट आ रहा है, कई जगह पे ज़्यादा बारिश हो रही है, तो फ्लड हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है या सोशल या इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है वो बिखर जाता है। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? Yes, समझ में? ma'am. ओके। That challenge to the development of Pacific Rim. It is important to assess their global, regional, economic and social impact. कि ये जब natural calamities, whenever the natural calamities happen, so when at that time the people assess or the person assess their global, regional, economic and social impacts. Okay, most of the economic assessment of the impacts of disaster have concentrated on the direct losses, that is the financial cost of physical damage. कि कैसा हो जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली कि जब भी ये नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं तो नेचुरल कैलेमिटीज से ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल नुकसान होता है। कुछ होता है, फॉर एग्जांपल यस्टरडे वी हैड सीन दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजास्टर। फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड वन इज मैन मेड डिजास्टर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड डिजास्टर। एम आई राइट? एम आई राइट? कल हमने ये Yes, डिस्कस ma'am. किया था। फवाद, Yes, ma'am. फवाद मुझे बताना कल कौन से पॉइंट्स ये नेचुरल डिजास्टर के आपके 5 पॉइंट्स क्लियर किए थे मैंने? हाँ मैम। ओके। तो अभी इसमें क्या पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मार्च महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, तो आपने कुछ सुना, आपने न्यूज़ पे ऐसा कुछ देखा होगा कि जो डिजास्टर है, डिजास्टर अकर्स। ओके, तो मैनमेड डिजास्टर की हम जब बात करते हैं कि भालू फॉर एग्जांपल गोला केमिकल का यूज करके गोला बारूद जो बनाया जाता है, जो जहाँ पे फेंका जाता है, आपने देखा भी होगा दिल्ली के कुछ एरिया में जो तोड़फोड़ हुई थी। ओके, वो मैनमेड डिजास्टर है, हम खुद नुकसान करते हैं हमारा। तो वहाँ पे कितने सारे लोगों के घरों का नुकसान, पूरे घरों को जला दिया था। एम आई राइट? ये आपने न्यूज में देखा होगा, घरों को जला दिया था कि नहीं? Yes. हाँ हाँ, Yes, ma'am. Yes. बोतलें फेंक फेंक के आग लगा के घरों को जला दिया था। फिर आपने ये भी देखा होगा उसमें जो गटर लाइन वहाँ पे बताई थी, वहाँ पे भी सब दिल्ली टायर मार्केट में। क्या एरिया का नाम बताए ना, दिल्ली के कौन से एरिया में था वहाँ पे? ये शायद मुझे अभी याद नहीं, लेकिन वहाँ पे दिल्ली टायर हाँ, वहाँ पे ये बताया था कि वहाँ पे सब गटर लाइन्स वगैरह हैं, कि वहाँ पे सब कचरा फेंक रहे, तो सब गटर लाइन्स ब्लॉक हो गई है। तो ये मैन मेड डिजास्टर, हम खुद अपना एनवायरनमेंट का नुकसान करते हैं। लेकिन जब हम उसमें भी फिजिकल डैमेज होता है और नेचुरल कैलेमिटीज में भी फिजिकल डैमेज होता है। तो इक्वली इम्पोर्टेंट आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट and secondary impacts of disaster, including the destruction of communities and the negative impacts on families. तो जब इस टाइप की जब कैलेमिटीज आती है तो थोड़ा सा कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सब पे सब लोग वहाँ पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती लोग, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी है थोड़ी सी उस टाइम चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था दिल्ली के उस मार्केट में, ऐसा ही हुआ था कि इस टाइप का मैन मेड डिजास्टर हम खुद बनाते हैं और खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये तो यहाँ पे हम उसकी सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होती है, कोई भी डिजास्टर हो तो उसकी सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होती है, वो हमको यहाँ पे दिखाई देता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए। ओके, अभी हम देखते हैं कि जो सोशल इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। द चैलेंजेस posed by the potential disaster in the Pacific Rim countries require rapid actions and also energetic risk management strategies. Whenever this kind of the disaster occurs, at that time that medical facilities, risk management strategies or risk management system will be work very fastly, but it happens that is
it seems that it will not work properly at that time to help reduce those negative impacts on countries. To help reduce negative impact, countries need an overall evaluation of the risk, including first is risk identification, risk reduction, third one is risk transfer. ओके, तो जब भी यहाँ पे कैसा बताएगी कि सोशली यहाँ पे इफेक्ट होते हैं पर उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे दिखाई देता है। तो जब भी ये कैलेमिटीज होती हैं तो उसका ओवरऑल इवेल्यूशन निकाला जाता है कि बाबा रिस्क आइडेंटिफिकेशन कि कितने प्रोपोर्शन में और कितने प्रमाण में नुकसान हुआ है, फिर रिस्क रिडक्शन उसका क्या किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, और रिस्क ट्रांसफर मीन्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब कुछ कौन करता है, जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है कि रैपिड एक्शन जो कोई ले सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ये इसमें काम करता है। यहाँ पे देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंसर्टेड एक्शन ऑन द रिस्क मैनेजमेंट विल हेल्प create and increase awareness of the economy and wide significance of natural disasters and problems they pose for long term development। तो जो रिस्क डिजास्टर या डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मिशन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इकोनॉमी मीन्स लोगों को काम कैसा मिले, कि अवेयरनेस उसमें कैसे, लोगों में अवेयरनेस कैसे लाए। कि फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम भी कुछ देखा होगा कि कुछ लोगों ने पैसे बैंक में जमा किए थे। जब हम आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे कि कुछ लोगों के बैंक में पैसे चले गए कि हाँ वो बैंक बंद हो गई या बैंक का गफला हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो सबके जो पूरी जिंदगी की मेहनत या पूंजी थी वो सब कुछ पैसा चला गया। तो उसमें भी जिस लोगों ने उन्होंने सपोर्ट किया था, तो ऐसे लोग कुछ बहुत ही हमको कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे डिजास्टर होते हैं तो डिजास्टर में लोगों की मानसिक स्थिति को और जो आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो वहाँ पे काम करता है, कि अवेयरनेस लाने का काम करता है। अकॉर्डिंगली this growing awareness will lead to the increased resilience in the countries of Pacific Rim। तो जितना भी जितने कंट्री में मीन्स हम ये जब disasters whenever the disasters occurs in the countries at that time and whenever the disaster management will work on this particular problem at that time, it makes awareness, suppose the awareness will come into the people, it will lead to that resilience in the countries। तो एक तरह हर जगह एक शांति का हम बोलते हैं माहौल दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि फॉर एग्जांपल जो अभी के जो यंगस्टर्स है, ओके, तो यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए उनको सिर्फ थोड़ा सा पुशअप कर दिया जाए तो वो उनके लिए काफ़ी होता है, और आदमी के दिमाग को पुशअप करने के लिए थोड़ा सा वक्त काफ़ी होता है। हाँ, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ हमको अपनानी हो तो थोड़ा सा ज़रूर देर लगता है, लेकिन जब बुरी चीज़ अपनानी हो तो उसको देर नहीं लगता। क्योंकि जैसे अभी बोला कि उस टाइम आपको कोई फॉर एग्जांपल आपका जब बुरा टाइम स्टार्ट होता है, जब हमारा बुरा टाइम स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मदद करने वाले, आपको समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ताना देने वाले या बोलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो शायद आप डिप्रेस हो जाते हैं या उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आप उसी से ही मदद मांगोगे ना, आप उसी से ही मदद मांगोगे ना, कि जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके बैड टाइम में। यस और नो? यस मैम। उस टाइम आपको अवेयरनेस लाने की जो कोशिश करते हैं उसको ही आप मानोगे ना, कि आप में स्ट्रांगनेस बनने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो लोगों ने आपको मदद की, तो आप उससे आपका शुक्रिया, आप उसका ही शुक्रिया मानोगे ना। तो समथिंग हैपन इन दिस फील्ड ऑल्सो। ओके, the next point is indirect effect, reduction in production demand। Then
ओके सॉरी, डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट्स में स्ट्रक्चरल डैमेज, वेज लॉसेस, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज है, हाईवेज है, टेलीकम्युनिकेशन है, डैमेज टू पब्लिक गुड्स, ओके, देन स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, प्रोडक्शन लॉसेस, देन प्रोडक्शन लॉसेस में क्या आता है, लॉस ऑफ कैटल्स, लॉस ऑफ कैटल्स, ये सब कुछ प्रोडक्शन में, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन लॉसेस में आता है। ओके, तो आपको ये पता चला होगा कि जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल डैमेज होता है, तो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है तो उसमें होता है कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। बिल्डिंग की बिल्डिंग्स कॉलेप्स हो जाती हैं, स्कूल कॉलेप्स हो जाती हैं, हॉस्पिटल्स कॉलेप्स हो जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑर्गेनिजम्स कॉलेप्स हो जाते हैं। तो उसको उभारने के लिए और उसको ठीक करने के लिए इट टेक्स टाइम, उसको टाइम लगता है। Do you understand this point properly? Do you understand this point properly? Yes or no? Yes. Okay. जैसे हम अपना एक एग्जांपल कि अभी जो 3 जून को हमारे यहाँ पे जो लॉस हुआ था, जो साइक्लोन आया था, तो आपके घर पे भी कुछ तो नुकसान हुआ होगा, एम आई राइट? सबके घर में कुछ ना कुछ नुकसान था ना? Yes, सर, ma'am. Yes. सबके घर में कुछ ना कुछ नुकसान था। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से इनकम बंद है, वहाँ पे हम बोलते हैं जो इनकम है वो जीरो है, और जो एक्सपेंडेंस है वो कैसा था, ज़्यादा था, एम आई राइट? एक्सपेंडेंस कैसा था, ज़्यादा था कि नहीं? खर्चे पे Yes. खर्चे बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये कुछ फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के तो घर ही टूट गए, जैसे हरने मुरुड जैसे, या केलसी में जो लोग रहते हैं वहाँ तो महीने 1.5 महीने तक तो लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे ना? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes. कुछ लोग कुछ ऐसा भी सुनने में आया था, कुछ 2 महीने तक मैडम। हाँ 2 महीने तक, मुझे ठीक से अंदाज ये मुझे नहीं पता था कि कितने महीने तक लाइट नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे खुद के दापोली में हमारे यहाँ पे 10-12 दिन के बाद लाइट आया था। तो सबका हम एक अंदाजा लगा सकते हैं या इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अगर लॉस होता है तो उसको रिकवर करना, कि फॉर एग्जांपल उस टाइम ऐसे कतार में लोग खड़े थे कि फॉर एग्जांपल जो रिपेयरमेंट वाला है, जिस आदमी को हम फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो वो जब डेट देगा तभी हम वो काम स्टार्ट कर सकते थे। ऐसा कुछ होता था। हाँ, किसके घर के छप्पर उड़ गए हैं, किसका घर का कुछ टूटा है, किसका घर का कुछ टूटा है, ये जो रिपेयरमेंट करने वाले जो इंसान है तो वो भी मिल रहे थे उस टाइम में, मिल रहे थे क्या? No. नो। No. तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स उस टाइम हमने फेस किया था, वो दिन चले गए। लेकिन ये मीन्स हम बोलते हैं जो नेचर के अपोज में हम कभी भी नहीं जा सकते, नेचर के अपोज में हम कभी नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल जिसके हम बोलते हैं, जिसके हम एग्रीकल्चर की बात करके, जिसके खुद का थोड़ा सा एग्रीकल्चर का सेक्टर है या क्रॉप्स वगैरह लगाए, वो पूरा का पूरा केलसी में पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, क्योंकि कुछ भी बाकी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हर जगह पानी पानी, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, ये ऊपर से ये प्रॉब्लम है। और सब जो उठाने वाले थे, हर जगह पेड़ पड़े हुए, तो पेड़ उठाने वाले इंसान भी नहीं मिल रहे थे। मिल रहे थे क्या उस टाइम? मिल रहे थे क्या? यस और नो? मिल रहे थे? No. No, ma'am. नो। ओके, अभी आगे देखते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये आपने डायरेक्ट इफेक्ट देखी कि फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है। अभी इनडायरेक्ट इफेक्ट में देखते हैं, रिडक्शन इन प्रोडक्शन डिमांड। ओके, तो हम अपना एक एग्जांपल ले लें, तो उस टाइम हमारी ज़रूरत क्या थी, अभी हमारी ज़रूरत क्या है? जब सपोज ये जब साइक्लोन आया था, तो उस टाइम हमारी ज़रूरत क्या थी कि जो घर में टूटा फूटा है उसको रिपेयरमेंट करवाया जाए, एम आई राइट? उसको रिपेयरमेंट करवाया जाए, एम आई राइट? Yes. ओके, जनरली Yes. जब हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपेंडेंसी होता है कपड़े खरीदी करना या और कुछ होगा, या और कुछ हम शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो उस टाइम आप क्या शॉपिंग करेंगे या जो जीवन जरूरत की जो चीज़ है उस पर ध्यान देंगे? क्या ध्यान देंगे हम लोग, क्या ध्यान देंगे? Basic things. हाँ, बेसिक Food, shelter. फूड, शेल्टर एंड वाटर, उस पर ध्यान देंगे। ओके, देन चेंजेस इन जीडीपी पर कैपिटा। ओके,
then increase the transport and cost डाउन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस कि जो अभी मार्केट की जो सिचुएशन है तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह पे सभी चीज़ें पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, और जो स्मॉल जो बिजनेस है या छोटे छोटे व्यापारी है या रिटेलर है या होलसेलर है, सभी को यहाँ पे इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड ही नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है क्या, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है क्या, प्रोडक्शन बढ़ने वाला है क्या, No. No. नो। ओके, सो कहीं पे भी जब नुकसान होता है तो उसकी इम्पैक्ट उसकी लॉन्ग इम्पैक्ट या लॉन्ग इफेक्ट हर जगह कहीं ना कहीं पे दिखाई देती है। देन एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी शेल्टरिंग, तो जो भी फॉर एग्जांपल जैसे हम उस टाइम की बात करें कि जब साइक्लोन आया था तो उस टाइम कुछ के किसी के फॉर एग्जांपल उस टाइम लकड़ी मिलना, ओके, कि बाबा जहाँ पे लकड़ी का ये फैक्ट्री वगैरह है उस टाइम से लकड़ी इकट्ठा करना, या फॉर एग्जांपल जो फर्नीचर के लिए जो चाहिए, ओके, लकड़ा, या कुछ हम बोलते हैं उसको मराठी में हम बोलते हैं कि रिप वगैरह वगैरह चाहिए, तो वो भी उसका कॉस्ट कैसा था, ज़्यादा था, कॉस्ट कैसा था, ज़्यादा था ना, High. फॉर एग्जाम्पल हाई था, कि फॉर एग्जाम्पल अगर टंकी टूट गई है पानी की तो उसको रिपेयरमेंट करने वाले जो प्लम्बिंग लोग हैं उनका शॉर्टेज था, प्लम्बर का शॉर्टेज था उस टाइम, हाँ. लोग हर जगह प्लम्बर एंगेज थे, जब हमने कॉल किया उनको तो सही उस दिन वहीं पे वो काम करने आए क्या, सही बताइए, उस दिन वो टाइम पे आए नहीं. क्या, नहीं, क्योंकि उस नहीं. टाइम उनका डिमांड ज़्यादा था, उनका जो हम बोलते हैं उनका जो वेपन्स होता है या उनका जो इक्विपमेंट्स होता है तो उसका भी डिमांड ज़्यादा था, एम आई राइट, उसका भी डिमांड ज़्यादा था, Yes, कि ma'am. जो प्लम्बिंग को लगते जो वेपन्स है या जो मटेरियल है तो उसका डिमांड ज़्यादा था, लकड़ी का जो कुछ भी, हम फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हमको ज़्यादातर हम बोलते हैं कि जो घर होते हैं तो फॉर जो घर है हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर मिट्टी के या सीमेंट, कुछ पक्के घर होते हैं कुछ कच्चे घर होते हैं, तो यहाँ पे जब भी जो जिस प्रकार का घर होगा उस टाइम उसी प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, उस टाइम का मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, एम आई राइट, Yes, तो ma'am. उसका डिमांड उस टाइम ज़्यादा था, उस टाइम उसका डिमांड ज़्यादा था, तो डू अंडरस्टैंड, उस टाइम जब Yes, मार्केट था, ma'am. जो मार्केट था कि जो कपड़ा चाहिए वगैरह वो कम था, लेकिन लॉकडाउन में अभी ज़्यादातर लोगों बेसिक थिंग्स पे अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खाने पीने की ज़रूरत या खाने पीने का चीज़ें, फॉर एग्जांपल कुछ लोग तो ऐसे भी जब हम मार्केट में जाते थे तो कुछ लोग ऐसे हमको दिखाई देते कि 2 महीने का राशन लेके जा रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है अभी लॉकडाउन बढ़ाएंगे, तो 2 महीने का राशन भर के रखा है पूरा, और ऐसे लाइन में खड़े रहते थे कि जैसा कभी मिलने वाला ही नहीं है, एम आई राइट, मिलने वाला ही नहीं है, तो इस टाइप का Yes, कुछ ma'am. सिनारियो हमको सोसाइटी में दिखाई देता है। डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, अभी आगे देखते हैं। अभी ये सोशल हमने देखा, फिजिकल इफेक्ट्स देखा, फिजिकल इफेक्ट देखा, सोशल इफेक्ट देखा, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इफेक्ट्स, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इफेक्ट्स और इकोनॉमिक मिटिगेशंस, अभी हम देखने वाले हैं। द मिटिगेशन ऑफ impacts of hazards can be adopted through the normal planning, just like Ministry of Development and former state planning organization are that adjusting the normal development programs to reduce the losses. For example, certain varieties of crops that are more wind or flood that resistance can be often introduced in the areas prone to flood or cyclone. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमको ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया कि कृषि में जिसके थोड़ा सा हम बोलते हैं एग्रीकल्चर या जिसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी है, जो उन्होंने कुछ जो अपने बाग बगीचे में उगा था, पूरा बाग बगीचा उनका क्या हो गया, बिखर हो गया,
उनका पूरा बाग बगीचा क्या हुआ, तितर बिखर हो गया ना, एम आई राइट? Yes, ma'am. तितर Yes. बितर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बताए, तो मिटिगेशन मीन्स द स्टेप्स टेक टू बी टेकन। Okay. The mitigation of impacts of hazard can be adopted through normal planning। जो जितना, तो वो प्लानिंग, वो मिटिगेशन मीन्स उसको कम करने के लिए, जो जितना नुकसान हुआ है उसमें से बाहर आने के लिए, तो वो उसके लिए काम कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर्मर स्टेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एसपीओ। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम्स हेल्ड करते हैं जिसमें जितना नुकसान हुआ है तो उसको नुकसान भरपाई करने का पैसा वगैरह कुछ देते हैं, या कुछ हेल्प हम बोलते हैं हेल्प करते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? डू अंडरस्टैंड Yes, दिस पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे भी फ्लड या प्रोन एरिया है, जहाँ पे भी फ्लड और ड्रॉट वगैरह ऐसा होता है, तो आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि वहाँ पे उनको जो बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, तो उनको वहाँ से निकाला जाता है। वहाँ वहाँ उनको एक जगह पे जहाँ पे वो सेफ हो सकते हैं, वहाँ पे उनको रेजिस्ट किया, उनको रखा जाता है। वहाँ पे फूड उनको दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, या कुछ हेलीकॉप्टर से उनको मदद भी दी जाती है कि जहाँ पे वो लोग पहुँच नहीं सकते। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये मिनिस्ट्री डेवलपमेंट करता है, एंड द फॉर्मर स्टेट प्लानिंग ये ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ काम डिज़ास्टर के दौरान करता है। So do you understand this point properly, all of you? yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखिए, एम to reduce the disaster's impact, the economy on the to reduce the disaster's impact on the economy and on the economic well-being of disaster survivors. The strengthen those sectors of economy that are particularly vulnerable to the disaster. Diversity of the economy. First point, diversity of the economy. Introduce or expand the disaster resistant economic activities and spread or relocate the economic activities to less vulnerable areas so that not all the principal enterprises would be affected by the same time। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक मिटिगेशन है उनका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें से बाहर निकाला जाए, कि जो सर्वाइव कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल सर्वाइव कर रहे हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जाए, उनको कुछ काम धंधा दिया जाए। कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ये साइक्लोन आया था तो उस टाइम सबकी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, स्ट्रांग थी या वीक थी? सबकी सिचुएशन कैसी थी? वीक थी। अगर हमको पैसा भी मांगना होगा या किसी ने हमसे पैसा मांगना होगा तो हम उनको मदद कर पाएंगे उस टाइम? हम किसी को मदद कर पाएंगे No. उस टाइम? No. नहीं, क्योंकि हमें खुद को ही उस टाइम पैसों की ज़रूरत थी, और उस टाइम किसी के पास पैसा मांगना वो एक तरीके से ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होगी उस टाइम, वीक थी ना। सबकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी? Yes, ma'am. वीक थी। ओके, so strengthen those sector of the economy that are particularly vulnerable to the disaster. What is the meaning of vulnerable? What is the meaning of vulnerable? Damage. Damage. What is the meaning of vulnerable? Damage नहीं है। What is the meaning of vulnerable? अभी तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप देख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। What is the meaning of vulnerable? बताइए। आप ही बताएंगे मुझे क्या होगा उसका मतलब? असुरक्षित। असुरक्षित। देखा आपने? देखा आपने? Yes. ओके,
तो यहाँ पे क्या बताया कि जितना ज़्यादा डिजास्टर जहाँ पे जिस मात्रा में ज़्यादा है, हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज एरिया में ज़्यादा हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए, उसके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और जैसे हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और स्टेट, ये देखिए यहाँ पे स्टेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या करता है, काम करता है। ओके, देन दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या? डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या? डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या? Types of economy. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, उसका मतलब क्या हुआ? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने हैं? डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। उसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रिज टूट गया है तो उसके लिए लगने वाला पैसा, यहाँ पे पुल टूट गया है तो उसको लगने वाला पैसा, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूस और एक्सपांड डिजास्टर रेजिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कर सके, उतना हमको मदद करना चाहिए। एम आई राइट? इंट्रोड्यूस एंड एक्सपांड द डिजास्टर रेजिस्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अभी जो लॉकडाउन का टाइम था, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल वाला एग्जांपल देती हूँ। तो जो मजदूर लोग होते, लेबर वर्क, वो फंस गए थे क्योंकि वो अलग स्टेट में से आते हैं और अलग स्टेट में काम करते हैं। यस और नो? अलग स्टेट में से आते हैं, अलग स्टेट में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? Yes. हाँ, तो आपने सोनू सूद, ये एक्टर का नाम सुना होगा, सोनू सूद जी। तो उन्होंने क्या किया था, जितना हो सके उन्होंने मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने का काम किया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंड नॉन पब्लिक सेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल दोज हु हैव, और कुछ जो लीजेंड है या कुछ जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जो इंसान है, उन्होंने भी पैसों की मदद वहाँ पे की थी। एम आई राइट? कि जहाँ पे खाना मिल सके उनको, फूड मिल सके, शेल्टर मिल सके, और कुछ और मदद करनी चाहिए थी, वहाँ पे उन्होंने किया था। एम आई राइट? तो पूरा लिस्ट का नाम आया था कि कुछ लोगों ने बहुत सारी मदद की थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की थी। ओके, द स्प्रेड एंड रीलोकेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू लेस vulnerable areas so that not all the principal enterprises would be affected at the same time. उसका मतलब क्या हुआ? स्प्रेड और रीलोकेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका मतलब क्या हुआ? स्प्रेड एंड रीलोकेट द एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? तो जितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा प्रोन एरिया में, या जहाँ पे वहाँ पे लोगों को सुरक्षित रखा गया, उनको जो असुरक्षित जगह पे है, जितना ज़्यादा उनको मदद मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनको एंगेज किया जाएगा, तो पूरा का पूरा जो एरिया है उसमें थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट आ सकता है। पूरा का पूरा थोड़ा सा तो अपलिफ्टमेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है एट द सेम टाइम? यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. Yes, ma'am. Yes. आगे देखिए, ये आपको एक चार्ट दिखाई देगा। ये चार्ट में क्या कर सकते हैं, कितना नुकसान होता है, ये चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिकवरी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो रिकवरी में कौन से पॉइंट्स आते हैं, फिर हैजार्ड एनालिसिस, कौन से प्रकार का जो नुकसान होता है वो यहाँ पे इस चार्ट में यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। देन आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, तो उसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं। फिर यहाँ पे आता है मिटिगेशन प्रिवेंशन, तो यह इसमें कौन से पॉइंट आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर्डनेस, हम क्या कर सकते हैं, क्या तैयारी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिडिक्शन एंड वार्निंग, तो उस टाइम जब ये कैलेमिटीज होती है तो उस टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट क्या काम करता है, तो वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। और लोगों का रिस्पॉन्स,